students. So today we will discuss the continuity of the last lecture, which is injury. So in injury we had read about the classification of the injuries that are according to the causative factors, mechanical or physical, which is divided into Ebley SF square coding, which is A for abrasion, B से bruises, L से laceration, I से incised wound, S से stab wound, F से firearm injury and fracture. Okay. नेक्स्ट वॉज थर्मल इंजरी में हीट एंड कोल्ड, जनरल एंड लोकल. केमिकल में इरिटेशन और कोरोजन. मिसलिनियस में इलेक्ट्रिकल रेडिएशन, लाइटनिंग, ब्लास्ट. ओके, एंड दैट वाइज अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी, सिंपल एंड ग्रीवियस, एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंजरी, सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, डिफेंस वुंड एंड फैब्रिकेटेड वुंड, and based on the time of infliction was antemortem and postmortem. Now we will look after the classification and definition of the abrasion. These are, what is abrasion is, it is the removal of the superficial epithelial layer, okay, usually the epidermis, by friction against the rough surface. So this is divided into 4 parts, which is LGPI, as you can see in the picture. L for linear, which is also called as scratch abrasion. G से graze, which is called as grinding abrasion. P से pressure or crushing abrasion, and I से imprint abrasion or pattern. Now we will see one by one. You can simply see what it is actually. So linear abrasion or scratch abrasion is because of the sharp or pointed object like pin, thorn, fingernail, etc. So these abrasions, like if you see the forensic point of view, these abrasions are common in the child abuse, like child is abused using the fingernails, and during sexual attacks also, during the throttling also we can see these abrasions, right? So according to that we can decide the crime of scene. So next is graze abrasion. What is graze abrasion is, it is the sliding abrasion. Like graze abrasion can cause by horizontal or tangential friction between the skin and the hard rough surface. So most common type of abrasion which are commonly seen during this road traffic accidents, or particles of a glass, gravels or dirt may be embedded in the wound. Okay, these are of 2 types. First is brush burn and second is friction burn. So these are very lengthy topic, so you can simply see the points only. You can write in exam so that you can get good marks, right? So in 5 mark question it can be occurred as what is abrasion is, what are the classification of abrasion. So you can write according to these, like you should write the points which I am telling you. And third point is pressure abrasion. What is a pressure abrasion? It is actually the direct impact of the linear pressure of the rough object between the skin. Okay, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इट इज़ वेरी कॉमन, लाइक द स्लाइट मूवमेंट डायरेक्टेड इनवर्ड्स रिजल्ट इन द क्रशिंग एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ द क्यूटिकल. मतलब क्या होता है इसमें, बेसिकली सुपरफिशियल लेयर डैमेज हो जाती है, ठीक है. जैसे कि हैंगिंग में, जैसे कि क्या रहता है, कपड़े से जब कोई हैंग करता है अपने आप को, तो ये बहुत कॉमन रहता है, ये वाला वुंड, प्रेशर एब्रेशन, ठीक है. और वी कैन से इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे कि बड़ा सा कोई जो ये रहता है, ट्रक रहता है, किसी भी आदमी के ऊपर गिर जाना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रेशर से वो पर्सन में डाई, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेशर एब्रेशन और क्रशिंग इंजरी, ठीक है. नेक्स्ट इज इम्प्रिंट एब्रेशन. इम्प्रिंट एब्रेशन क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द स्किन. जैसे कि क्यूटिकल, जिसमें क्या है, क्यूटिकल्स जो स्किन के रहते हैं ना, वो इट गेट क्रश्ड एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड बियर्स द इम्प्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टीथ बाइट मार्क, ठीक है, या फिर रेल पैटर्न जो रहता है, रेल पैटर्न इंजरी में भी ये मिलता है, ठीक है. नाउ वी विल सी द डिफरेंशियल डायग्नोज बिटवीन द एंटीमोर्टम एब्रेशन एंड पोस्टमोर्टम एब्रेशन. So it can come in the 2 mark question, like in the antemortem abrasion means death से पहले का abrasion, मतलब एक पर्सन है, उसको चोट लगने की वजह से डेथ हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या है, साइट अगर हम देखेंगे एब्रेशन का, तो ये कहीं भी मिल सकता है, एनीवेयर ऑन द बॉडी. एंड पोस्टमॉर्टम एब्रेशन मीन्स कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पॉइजन दे के और एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट दिखा दिया कि भाई पेशेंट जो पर्सन है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरा है, तो उसके अंदर क्या है, पोस्टमॉर्टम एब्रेशन यूजुअली ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस दिखेगा, ठीक है, जो क्रिएट किया होता है. या फिर समटाइम क्या होता है, पेशेंट को ड्रग्स दे के या कोई भी टॉक्सिक एजेंट दे के कार में छोड़ देते हैं और उसे ऐसे शो कर देते हैं जैसे कि
कोई नेचुरल डेथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कलर। अगर हम देखें एंटीमोर्टम एब्रेशन में ब्राइट रेड कलर मिलता है और पोस्टमॉर्टम एब्रेशन में येलोइश ट्रांसलूसेंट एंड पर्चमेंट लाइक। क्यों मिलता है? क्योंकि जब एक पर्सन लाइव होता है और लाइव होने के बाद जो उसे चोट लगती है तो रेड ब्लड सेल्स विल कम आउट, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, पेशेंट मतलब जो पर्सन है वो मर जाता है, उसके बाद अगर उसको चोट लगती है तो ब्लड रेड फ्रेश रेड ब्लड नहीं आएगा अगर वो बहुत टाइम हो गया है उस पेशेंट की डेथ को, ठीक है। तो येलोइश ट्रांसलूसेंट पर्चमेंट लाइक ब्लड आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सुडेशन, मतलब उसके ऊपर डिपोजिशन ऑफ द एक्सुडेट पार्ट, तो वो मिलेंगे ज़्यादा। और स्कैब स्लाइटली रेज्ड, ज़्यादा मिलेंगे। और पोस्टमार्टम एब्रेशन में लेस मिलेंगे, देयर विल बी नॉट बी एनी स्कैब। अब नेक्स्ट है वाइटल रिएक्शन, प्रेजेंट मिलेगी, उसमें एब्सेंट मिलेगी। हीलिंग प्रोसेस में भी एविडेंट, इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंशियल डायग्नोस। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे एब्रेशन का। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या रहता है, ये क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में आ जाता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द एब्रेशन क्या रहता है बेसिकली, इसमें साइट ऑफ द इम्पैक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पता लगता है, ठीक है। दूसरा क्या है, पैटर्न इंजरी हेल्प करती है कनेक्टिंग द वुंड एंड द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। क्योंकि जैसा पैटर्न का इंजरी होगा वैसा ही पेशेंट का पता लग जाएगा कि इसका रीज़न क्या रहा है डेथ का। नेक्स्ट है टाइम ऑफ द असॉल्ट पता लगेगा, ठीक है। कैरेक्टर एंड द मैनर ऑफ द इंजरी। टाइम ऑफ द असॉल्ट कैसे पता लगेगा कि वुंड का जो उस टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मिलेंगे ना, जैसे कि अगर फ्लैश ब्लीडिंग होगी तो कुछ ही टाइम हुए मतलब अभी डेथ को, ठीक है। या फिर उसकी वुंड पे कोई मैगॉट्स मिलेंगे या फिर कुछ भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ द असॉल्ट हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कैरेक्टर एंड द मैनर ऑफ द इंजरी पता लगेंगे, ठीक है। जैसे टूथ बाइट मार्क्स में पैटर्न इंजरी पता लगती है, ठीक है, कि भाई इसको असॉल्ट करके मारा गया है। या फिर थ्रोटलिंग में जैसे कि पता लग जाता है कि नेल्स और फिंगर के निशान मिलेंगे, ठीक है। एब्रेशन ऑन द विक्टिम में ऑल्सो शो वेदर द फिंगर नेल ऑफ द असैलेंट वर लॉन्ग और इरेगुलर और ब्रोकन, ये सब पता लग जाएगा, ठीक। तो ये सब टाइम ऑफ द डेथ और कैरेक्टर ऑफ द डेथ एंड मैनर ऑफ द इंजरी, ये सब पता लग जाता है एब्रेशन से। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये सब चीज़ें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम पढ़ेंगे ब्रूस और कंटूजन। क्या होता है ब्रूस? ब्रूस इज़ द एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब ब्लड का सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जमा हो जाना, ड्यू टू रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स जो छोटी छोटी कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स रहती हैं वो किसी भी इंजरी की वजह से रप्चर हो जाती हैं, ब्लंट फोर्स से यूजुअली या प्रेशर से, तो उसकी वजह से वो ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, उसको ही ब्रूस बोल देते हैं या नील पड़ जाना बोल देते हैं, ठीक है। तो ब्रूस जो है बेसिकली ये शब्द जो है इंग्लिश वर्ड, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो डराइव हुआ है ब्राइसन से, BRYSAN, उसका मतलब है टू क्रश, ठीक है। तो यूजुअली इसमें क्या है, जो स्किन की लाइनिंग रहती है उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। जैसे मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई थी इंजरी की, इंजरी इज मीन्स वुंड की, ठीक है। तो वुंड में क्या था, डिसकंटिन्यूटी इन द लाइनिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। तो ब्रूस जो बेसिकली रहता है, इसे नील भी बोलते हैं, ठीक है। दैट ब्रूस इज़ द लेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ओवरलाइंग इंटैक्ट स्किन एज अ ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन। अगर क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का तो आप डेफिनेशन में ये चीज़ लिख सकते हो कि ब्रूस जो है वो एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू रप्चर ऑफ कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अब कॉज देखेंगे इसका, तो कारण क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि ब्लंट फोर्स से हो सकता है, जैसे कि किसी ने मुक्का मारा ज़ोर से, ठीक है, या फिर आयरन रॉड मारी है, ठीक है, चेन मारी है, तो उससे क्या है ब्रूज हो सकता है। अब दूसरा जैसे कि किसी भी प्रेशर, मतलब प्रेशर से कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट मारना, ठीक है, वो भी उससे भी ब्रूज हो सकता है। तो इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस क्लासिफिकेशन आपको बता देती हूँ। इसमें इंट्राडर्मल ब्रूज होता है और सबक्यूटेनियस ब्रूज होता है और डीप ब्रूज होता है, मतलब ये जो है कितने फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया है। जैसे कि इंट्राडर्मल में क्या है, इसमें क्या है, इमीडिएटली जो है सब एपिडर्मल लेयर के अंदर ब्रूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो फैटी लेयर में ब्रूज होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर क्या है एजेस ब्लर हो जाती हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन रहता है ब्रूज। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डीप ब्रूज क्या होता है, जो 1 से 2 दिन लगता है अपीयर होने में। ठीक है, और उसको बोलते हैं डिलेड ब्रूजिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गए 3 तरह के ब्रूज। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस देखेंगे तो मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस में क्या है, इसमें भी यही है कि इट इज़ एडवाइजेबल दैट मेडिकल ऑफिसर शुड एग्जामिन द पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स, क्योंकि क्या रहता है इसमें डिलेड ब्रूज रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एज ऑफ द इंजरी पता लगती है, डिग्री ऑफ द वायलेंस पता लगता है, पैटर्न पता लगता है पेशेंट मतलब विक्टिम का, और वेपन का पता लगता है। और दूसरा क्या है, पोस्टमार्टम एग्जामिन करने के बाद, डीप इंसिजन देने के बाद आपको बता सकते हो कि एंटीमोर्टम है या पोस्टमार्टम है, जैसे मैंने आपको एब्रेजन के बारे में भी बताया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स जो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। देखेंगे लैसरेटेड वुंड। व्हाट इज़ लैसरेशन इज़, इट इज़ द टीयरिंग ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल और इंटरनल ऑर्गन कॉज्ड बाय ईदर क्रशिंग फोर्स और बाय और प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ब्लंट फोर्स टू द ब्रॉड एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अगर हम देखें इसे कि टीयरिंग और स्प्लिटिंग ऑफ द स्किन है लैसरेशन, सिंपली हम सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि ये ब्लंट फोर्स से क्या मतलब डिफरेंशियल पहले वाले उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहता है, इसमें क्या है, द ब्लंट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सटेंसिव ब्रूसिंग एंड लैसरेशन ऑफ द डीपर टिश्यू, इसको बोलते हैं क्रश इंजरी, इसको क्रश इंजरी भी बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसके टाइप्स, इसमें आप देखेंगे 5 तरह के होते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट लैसरेशन है, वो ज़्यादा आप डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टाइप्स पता होना चाहिए कि स्प्लिट लैसरेशन क्या होता है, स्ट्रेच लैसरेशन क्या होता है, एवल्जन क्या होता है, टीयर क्या होता है, कट लैसरेशन क्या होता है, मैं आपको चार्ट में आपको समझाऊंगी। ठीक है।